The current provided by the cells are not enough to operate our electrical appliances used in our homes. Then, how the electric current is supplied to our homes? The battery is also not enough. Do you know how the household distribution of electrical energy is possible? Hello, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss first about the cell. In the previous lecture, we discussed the series connection, the parallel connection, how the cell works and how the battery is working. Now, we are going to discuss detail of cells. The cell is basically the source of electrical energy. We previously discussed that the cell provides a small amount of current. But when these cells are connected in series, they form the battery and the current amount is increased. But the electric current that is provided by the battery is also not enough for the electrical appliances used in our homes. Different types of cell architecture we discuss. The very first architecture of cell is known as voltaic cell. Voltaic cell. Voltaic cell is basically, this is the glass jar. This is the glass jar. Two rods are placed of different types of metals. This is the one rod and this is the another rod of another type of metal, right? These rods are put into the acid and the acid is dilute H2SO4, that is sulfuric acid. This is the dilute H2SO4. This is zinc rod and this is copper rod. The copper rod, as we know, the cell is having two terminals. One is positive terminal and one is negative terminal. So, for the positive terminal, this copper rod is placed and it is known as positive electrode. And this zinc rod is known as negative electrode. But what happens when we externally connect the bulb? This is the bulb and we connect this with this. The bulb starts glowing as the current is passing from copper positive electrode to negative electrode. But this type of cell, voltaic cell, maximum provide the EMF of 1 volt. 1 volt is not enough for the electrical appliances to operate. 1 volt EMF is not, you cannot operate electrical appliances like AC, fridge with this 1 volt. Right? There are two disadvantages of using this voltaic cell. Disadvantages of voltaic cell. First one, the first disadvantage of the voltaic cell is local action, and second disadvantage is polarization. This dilute H2SO4 is acting as an electrolyte. Electrolyte is basically a fluid which carry the electric charges. ठीक है. लोकल एक्शन में क्या होता है कि जिंक जो है इसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, कार्बन एंड आयरन. दिस कार्बन एंड आयरन come in contact with this electrolyte. Carbon and iron impurities present in zinc. This react with the electrolyte and produces many tiny cells in this, and local current starts to flowing in that. This is basically the local action.
इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है, जिंक के ऊपर कोटिंग की जाती है, किसकी, मरकरी की। मरकरी की कोटिंग करने से क्या होगा कि जिंक रॉड जो है दैट इज नॉट कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद दीज इम्प्यूरिटीज, ये इम्प्यूरिटीज के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये लोकल टाइनी सेल्स जो होंगी वो हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। नाउ व्हाट अबाउट द पोलराइजेशन, जब now when the current starts flowing, when we externally connect these electrodes with some electrical appliance like bulb with the help of the connecting wires, then with the current start flowing in these two electrodes. When the current starts flowing in these two electrodes, in the zinc electrode, then this zinc electrode, ये zinc electrode क्या होती है, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है किसके अंदर, हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो उससे क्या होता है, लास्ट में जब मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर कवर करवाया था तो उसमें एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी, दैट इज Zn प्लस H2SO4 गिविंग राइज टू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन बबल्स, हाइड्रोजन गैस। दिस हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन बबल्स इज एक्यूमुलेटेड ऑन द कॉपर प्लेट, ये कॉपर प्लेट के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और कॉपर प्लेट के ऊपर क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, द फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना। जैसे कि हम गाड़ी को चलाते हैं तो एक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या करता है, अगर आप रेस नहीं दोगे तो क्या करेगा, फ्रिक्शन आपकी गाड़ी की स्पीड को अपोज करेगा। सेम केस है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है, वो करंट को फ्लो नहीं होने। जब वो हाइड्रोजन जो ये बबल्स इवॉल्व हुए थे ये हमारे कॉपर प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होंगे तो एक रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट डेवलप करेंगे, दैट इज बेसिकली नोन एज पोलराइजेशन, उसको पोलराइजेशन कहा जाता है। अब इस पोलराइजेशन को अवॉइड करने के लिए डीपोलराइजर यूज करेंगे, डीपोलराइजर्स। और ये डीपोलराइजर्स कौन कौन से होते हैं, एक है मैग्नीज, डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। द नेक्स्ट पोलराइजर इज पोटेशियम क्रोमेट, नेक्स्ट पोलराइजर इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इस तरीके के जो भी डीपोलराइजर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं पोलराइजेशन को अवॉइड करने के लिए। ये क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन बबल्स हैं, जो हाइड्रोजन बबल्स यहाँ पे इसके डिसॉल्व होने से निकल रहे थे उसके साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर की फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। दैट्स वाई द पोलराइजेशन जो है वो हमारा क्या हो जाता है, इस केस में रिड्यूस हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लेक-लांचे सेल। This is the picture of the Leclanche cell. In this, two electrodes are, this is the zinc electrode, that is Zn, and this black electrode is the carbon electrode. This is the carbon electrode put into the porous pot. This is the porous pot. ठीक है। Now, in this Leclanche cell, ammonium chloride is used as a electrolyte instead of H2SO4. Ammonium chloride is used as electrolyte. Ammonium chloride is NH4Cl. This is ammonium chloride. Now this zinc electrode is acting as a negative electrode. This is acting as negative electrode, and this carbon electrode is acting as a positive electrode. And this porous pot is containing the mixture of carbon and मैग्नीज डाइऑक्साइड्स, ठीक है। porous pot contains the mixture of carbon and manganese dioxide. Maximum EMF
maximum EMF that is provided by this cell is 1.46 volt. ठीक है, 1.46 volt EMF is not enough to provide the sufficient amount of electric current that is required by the electrical appliances or household appliances. Therefore, this Leclanche cell is also known used in our houses. The next type of the cell architecture that we are going to discuss is dry cell. This is the architecture of the dry cell. Dry cell basically consists of a cylindrical container. This cylindrical container is made up of zinc. This cylindrical container is basically made up of zinc. This is the zinc container which is in the form of cylinder. And this lined wall is basically the carbon rod. This is the carbon rod, and this is the brass cap. This is the brass cap. This is basically the electrolyte. This is the basically electrolyte. Electrolyte is a mixture of, in dry cell, it is a mixture of zinc chloride, manganese dioxide, ammonium chloride, and powdered carbon. All these chemicals forms a paste, and that paste is put into this container, inside container, which is acting like an electrode. Now this brass cap and the carbon both acts like a positive electrode, and this zinc container is acting like a negative electrode. Current starts flowing from positive to negative electrode when electrical bulb or LED you can connect. Why I am talking about the LED, because the maximum EMF that dry cell can provide is 1.46 volt. That is enough to drive an LED. ठीक है, ये इस तरीके से हमारा इसका आर्किटेक्चर होता है. Now this gap which I shown here, this is airtight gap, or you can say airtight seal. Now the next type of the cell that we are going to discuss is bichromate cell. This is the architecture of the bichromate cell. It consists of a glass flask flattened at the bottom. Glass flask जो क्या है, बॉटम से फ्लैट है. ठीक है, अब नाउ दिस इज द कार्बन रॉड. It consists of two carbon rods. This is the first carbon rod, and this is also the carbon rod. This is the second carbon rod. Now this is basically the zinc rod. A stopper is placed at the top of. This is the electrolyte. Electrolyte is a mixture of potassium bichromate या potassium dichromate, potassium dichromate and dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid
This point is screw management. With the help of this screw management, you can move the zinc rod up and down. Management. When the cell is not in the working condition, or some external supply, some external electrical appliance is not connected to the cell, then in that particular case the zinc electrode is moving above the electrolyte solution, because as we know, when the zinc electrode is come in contact with diluted sulfuric acid, then local action is produced. To avoid that local action, this zinc electrode can be moved up and down with the help of the screw management. Now, this zinc electrode is acting like a negative electrode, and ये carbon electrode is acting like a positive electrodes. ठीक है, जो हमने फर्स्ट सेल पढ़ा था दैट इज वोल्टेक सेल, उसके अंदर क्या पढ़ा था कि जिंक रॉड जब हमारी कांटेक्ट में आती है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहां दो तरीके के डिसएडवांटेजेस होते हैं, वन इज द लोकल एक्शन एंड अनदर वन इज द पोलराइजेशन। इसीलिए उस डिसएडवांटेज को अवॉइड करने के लिए इस जिंक रॉड को एक स्क्रू मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो कनेक्ट किया, स्टॉपर से पास करके एक स्क्रू मैनेजमेंट से कनेक्ट किया हुआ है, जिससे जब ये सेल जो है वो वर्किंग कंडीशन में ना हो, उस केस में क्या करेंगे, स्क्रू मैनेजमेंट से इस जिंक इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से अबव मूव कर सकते हैं। वर्किंग कंडीशन में ना होने का मतलब है कि ये जो दो वायर्स मैंने यहां दिखाई हुई है, दिस इज द पॉजिटिव वन एंड दिस इज द नेगेटिव वन, तो यहां पर कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड नहीं है, तो इट मींस दिस सेल इज नॉट इन द वर्किंग कंडीशन, तो वो उस वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो उस केस में ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है उसको मूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू मैनेजमेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से अबव। जब हमें एक्सटर्नल डिवाइस कोई कनेक्ट करना है तो उस केस में जिंक इलेक्ट्रोड को स्क्रू मैनेजमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, डिप कर दिया जाता है। दूसरी चीज क्या है कि लोकल एक्शन और पोलराइजेशन को अवॉइड करने के लिए जो यहाँ पर हाइड्रोजन बबल्स जो डेवलप होंगे ड्यूरिंग द व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दैट, वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, किससे, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से। पोलराइज मैंने बता दिया था कैसे करते हैं, पोलराइज क्या होता है, हाइड्रोजन बबल्स जो होंगे वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे और वाटर सॉल्यूशन जो है वो हमारा फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से बाइक्रोमेट सेल जो होता है वो वर्क करता है। नाउ मैक्सिमम ईएमएफ जो होता है इस पर्टिकुलर केस में दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। वो किसके इक्वल होता है, 2 वोल्ट के इक्वल होता है। अब बात करें कि जो डिफरेंट टाइप, सिर्फ ये मैंने 3-4 सेल्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए थे। ड्राई सेल जो है दैट इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ लेक्लांचे सेल। वो क्या है, एडवांस वर्जन है किसका, लेक्लांचे सेल का। इसके अलावा भी बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो यूज होते हैं, लाइक बटन सेल्स जो होते हैं दैट आर यूज्ड इन कैलकुलेटर्स। बटन सेल्स जो होते हैं दे आर यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, रिस्ट वॉचेस के अंदर भी यूज किया जाता है। ठीक है, एंड दूसरे टाइप ऑफ सेल्स जो हैं दैट इज स्टोरेज सेल्स। इनको कहां यूज किया जाता है, कार्स के अंदर यूज किया जाता है, ताकि हेडलाइट ऑफ कार्स जो है, कार्स के अंदर किस लिए यूज किया जाता है, जो हेडलाइट आपकी ग्लो करती है, किस केस में, नाइट केस में या फॉगिंग के केस में, वो है ग्लो करती है किसकी वजह से, स्टोरेज सेल्स जो उसके अंदर यूज किए गए हैं, बैटरी के अंदर यूज किए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स जो होते हैं वही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एक ईल फिश है, EEL, दिस eel fish is also generating the electric current. When you touch this eel fish, you feel the current that is generated by this fish. सेल्स तो हमने पढ़ लिया। सेल्स पढ़ने के बाद हमें क्या हुआ कि मैक्सिमम ईएमएफ जो होते हैं हमारे वो कितने हो सकते हैं, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। बट जो घर में हमें पावर सप्लाई चाहिए होती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट की होती है। अब कितने सारे सेल्स जो हैं वो आप आपस में कनेक्ट करोगे कि आपको 220 वोल्ट की जो है वो सप्लाई प्रोवाइड हो। तो इन दैट पर्टिकुलर केस सेल्स आर नॉट यूज्ड फॉर द हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस केस में क्या यूज किया जाता है, हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज होते हैं पावर प्लांट्स।
पावर प्लांट्स जो है उनको यूज किया जाता है, वो हमारी प्रोवाइड करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर प्लांट्स के अंदर एक डिवाइस होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जो आपने जनरेटर के नाम से सुना भी होगा, बहुत सारी शॉप्स के बाहर देखा भी होगा। ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्रोवाइड की, या तो आपने हैंडल से प्रोवाइड की है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के जनरली आपने दो मीन्स देखे होंगे, या तो हैंडल को घुमाते हुए देखा होगा, जैसे कि आप शॉप्स वगैरह के शटर्स को बंद करते हुए देखते हो। इसी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी एक तो हैंडल्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, दूसरी प्रोवाइड की जाती है सेल्फ स्टार्ट के लिए। एक स्मॉल बैटरी जो है वो उसके ऊपर रख दी जाती है और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो एक स्मॉल मैकेनिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड करे और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फर्दर उसको कन्वर्ट करता रहे। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज डायनामो एंड अनदर वन इज टरबाइन। ठीक है, टरबाइन क्या करता है हमारा, बेसिकली जब वाटर जो है इसके ऊपर फॉल करेगा या स्टीम के जब ये कांटेक्ट में आएगा तो ये रोटेट करेगा। ये रोटेट करेगा तो ये डायनामो के पार्ट को डायनामो रोटेट करेगा। डायनामो जो है वो इसके साथ टरबाइन के साथ कनेक्टेड है। जब डायनामो रोटेट करेगा तो इट मींस मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी हमारी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई है वो प्रोवाइड की जाती है सिटीज और विलेजेस में। नाउ हाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज household distribution of electrical energy. Next topic is household distribution of electrical energy. ठीक है, अब हुआ क्या, अभी हमने पढ़ा कि हाउस होल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पावर प्लांट्स जो हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, पावर प्लांट से हाउस तक जब हमारे पास जो सप्लाई आएगी वो किसके थ्रू आती है, केबल्स के थ्रू आती है। दीज आर यूज एज केबल्स जो पोल्स पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हाउस है, हाउस तक इस सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, ये जो है ये पहले किस में जाती है, मीटर में जाती है। हर एक हाउस का इंडिविजुअल मीटर होता है, वहां तक क्या होती है, पावर प्लांट से जो केबल्स आई वो उस मीटर तक जाएंगी। अब मीटर से आपके हाउस में जो है वो केबल प्रोवाइड की जाएगी। दो केबल्स होती हैं जो हमारे घर तक आती हैं, वन इज द लाइव वायर and another one is न्यूट्रल वायर। ठीक है, अब ये हाउस में आ गए। हाउस में भी ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली आपने ला करके छोड़ दिया, हाउस में आने के बाद में इसको कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, मेन फ्यूज के साथ। मेन फ्यूज के साथ, और मेन फ्यूज से फिर ये कनेक्ट होती हैं किससे, मेन स्विच से, और फिर मेन स्विच से ये सप्लाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है घर के दूसरे पार्ट्स में। अब बात करते हैं सबसे पहले मीटर की। मीटर की जो यूनिट होती है दैट इज इन किलो वाट आवर, और जिसको हम क्या कहते हैं, kWh, कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, जो 1 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। और हर एक अप्लायंस की इलेक्ट्रिक पावर जो होती है या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, मतलब वो स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं वो मेंशन्ड होती हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर। वो आपको क्या करेगा, जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूटर है
मीन्स लाइक आप गोदरेज खरीदोगे, गोदरेज का अप्लायंस कोई खरीदते हो, या आप सैमसंग का कोई अप्लायंस खरीदते हो, या आप और किसी कंपनी का कोई भी अप्लायंस जो है वो परचेज करते हो, तो उसके ऊपर वो सारी स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं वो मेंशन होती हैं। अब किलोवाट आवर की बात मैं करूं, इलेक्ट्रिक पावर को जनरली एक्सप्रेस किया जाता है वाट के अंदर। जो आपके अप्लायंसेस होंगे उनके ऊपर जो पावर लिखी होगी दैट इज मेंशन्ड इन वाट, बट मीटर जो है वो मेजर करता है किलोवाट आवर के अंदर। किलोवाट आवर मीटर जो है वो बेसिकली क्या मेजर करता है कि आपने कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम की है, आपके हाउस में कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई है, दैट इज मेजर्ड बाय द मीटर। किलोवाट आवर का मतलब है कि एक डिवाइस है जो 1000 वॉट जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसने 1 आवर के अंदर जो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम की दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, एक 1000 वॉट का अप्लायंस है, उसने 1 आवर में जो एनर्जी कंजम्पशन किया दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल है। अब अब मीटर ने आपकी एनर्जी मेजर कर ली कि हाउस में कितनी एनर्जी जो है वो यूज हुई है। अब उसको कनेक्ट किया गया मेन फ्यूज के साथ, मेन फ्यूज से मेन स्विच, और उसके बाद डिफरेंट स्विचेस तक वो सप्लाई जो है वो प्रोवाइड की गई। अब घर के अंदर जो स्विचेस यूज होते हैं वो दो तरीके के स्विचेस होते हैं, वन इज 2 सॉकेट स्विच एंड अनदर वन इज 3 सॉकेट स्विच। ठीक है, जो 2 सॉकेट वाला स्विच है उसके अंदर सिर्फ 2 ही वायर्स होती हैं, वन इज द लाइव वायर एंड अनदर वन इज द न्यूट्रल वायर। दिस इज द 2 socket switch and this is the 3-pin socket switch. You can say it also as 2-pin socket switch or 2-pin socket switch. जो ये 2 पिन्स हैं, वन इज लाइव वायर एंड अनदर वन इज न्यूट्रल वायर। But in this particular case, these 2 pins are, one is live wire, one is neutral wire. The third pin that is provided is for the earth wire. जनरली इनके कलर्स जो होते हैं, अगर आपकी बुक्स में कलर्ड डायग्राम्स बने होंगे तो उसमें लाइव वायर इज रिप्रेजेंटेड विद रेड कलर, न्यूट्रल वायर इज रिप्रेजेंटेड विद ब्लैक कलर एंड द अर्थ वायर इज रिप्रेजेंटेड विद ग्रीन कलर। ठीक है, अब क्या हो अगर जो है वो सर्किट हमारा क्या हो, देखो अप्लायंस में अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, जब घर के अंदर जो मेन स्विच तक लाइट आई है वो किसके थ्रू आई है, मेन फ्यूज के थ्रू आई है। अब फ्यूज को यूज क्यों किया जाता है, फ्यूज को यूज करने के लिए क्या पर्पस होता है फ्यूज का, कि अगर आपकी ओवरलोडिंग हो गई है या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है तो उस केस में आपका अप्लायंस जो है वो खराब ना हो, तो इसलिए फ्यूज को यूज करते हैं। अब शॉर्ट सर्किटिंग किस केस में होगी, सपोज करो वायर जो है, कभी आपने देखा हो घर के अंदर जो वायर यूज होती है उसके अंदर क्या होता है कि जिस तरीके, ये क्या होता है आपका एक पतली सी वायर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है इंसुलेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये क्या है, मेन मेटेलिक वायर है। मेटेलिक वायर जो है वो आपकी कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, डिपेंडिंग कि कौन सी यूज की गई है। अब ये जो है ये बेसिकली क्या है, इंसुलेशन है, दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अब कहीं 2 वायर्स के बीच में ये इंसुलेशन जो है वो क्या हो जाए, कट हो जाए, ठीक है, ब्रेकअप हो जाए इस इंसुलेशन का, और दूसरी वायर जो है वो आपकी मान लो यहीं से जा रही है और उसका भी इंसुलेशन जो है वो कट हो गया, तो क्या होगा, दोनों वायर्स में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दैट इज बेसिकली नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है कि एक प्लग है उस पर आपने बहुत सारे डिवाइसेस जो है
वो कनेक्ट कर दिए, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के केस में क्या होता है, अप्लायंसेस जो होते हैं वो हमारा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ड्रॉ करते हैं। अब उसके लिए फ्यूज यूज किया जाता है। फ्यूज जो होता है वो क्या होता है, एक वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्यूज का मैं स्ट्रक्चर जो है वो अब ड्रॉ करती हूँ। पोर्सिलेन ग्रिप, दिस इज द केसिंग, जो ये है ये केसिंग है। देयर आर टू कॉपर क्लैंप्स, वन इज T1 and another one is T2. These are copper clamps. This is also the copper clamp. This is the fuse wire. Different types of fuse wire are used, और डिफरेंट टाइप्स मींस अलग अलग मटेरियल्स की फ्यूज वायर जो है वो यूज की जा सकती है। फ्यूज वायर की थिकनेस जो है वो आपकी अलग अलग हो सकती है। जितना ज्यादा वायर थिक होगा उतना ज्यादा वो करंट जो है वो विदस्टैंड कर सकता है, मतलब होल्ड कर सकता है। कि आपकी थिकनेस अगर वायर की ज्यादा है तो उसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। नाउ दिस फ्यूज वायर, दिस इज द कॉपर क्लैंप एंड दिस फ्यूज वायर इज मेड अप लेड एंड टिन एलॉय, और यू कैन से टिन लेड एलॉय। ठीक है, ये फ्यूज वायर जो होती है वो टिन लेड एलॉय की बनी होती है। फ्यूज को जो होता है वो किसी भी अप्लायंस के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। आप यूज किस लिए करते हैं, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट से अप्लायंस जो है वो हमारा खराब ना हो, उसके लिए फ्यूज को यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, सीरीज कनेक्शन में यूज किया जाएगा, इन सीरीज विद द अप्लायंस, विद द अप्लायंस। देखो हर एक डिवाइस, हर एक अप्लायंस की जो है वो अपनी करंट की अमाउंट है कि वो इतना करंट जो है वो होल्ड विद स्टैंड कर सकता है, मतलब वो खराब नहीं होगा। लेकिन इन केस एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट जो है वो आ जाए तो वो दो केसेस में आ सकता है हमारा। फर्स्ट केस इज शॉर्ट सर्किटिंग, जो अभी बताया था, शॉर्ट सर्किट के केस में। सेकेंड केस इज ओवरलोडिंग। दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं, ओवरलोडिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो उस केस में क्या होगा जो फ्यूज वायर है उसका अपना एक टेम्परेचर है। जब इसमें से रेटेड अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करेगा तो इसको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। जैसे ही यहां पर एक एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो क्या होगा, ये वायर जो होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। वायर ब्रेक डाउन होने के बाद में वो करंट जो है वो आपके अप्लायंस तक जो है वो रीच नहीं करेगा, तो आपका अप्लायंस जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट के केस में क्या होगा, सेफ होगा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस टू प्रोटेक्ट द अप्लायंस फ्रॉम द एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग से जो आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करे, दैट सेफ्टी डिवाइस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फ्यूज। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। अब प्रिकॉशंस जो है वो हमें क्या क्या लेने चाहिए जब हम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन तो यही है कि हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस के साथ में क्या यूज करें, फ्यूज यूज करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, अप्लायंस जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट में वो नहीं होगा, खराब नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि मैं अप्लायंस वो यूज करूं जो ISI मार्क्ड है। ठीक है, थर्ड क्या है प्रिकॉशन, कि हम जो है वो मेटेलिक वायर के साथ, जब आपका स्विच ऑन है तो उस केस में हम मेटेलिक वायर को टच ना करें, जिससे क्या हो कि करंट जो है वो हमें हार्म ना पहुंचाए। थर्ड क्या है हमारे पास कि टेस्टर को यूज करें चेक करने के लिए कि करंट जो है वो पर्टिकुलर वहां उस सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, जब आप अप्लायंस को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, आप फोर्थ क्या था, टेस्टर यूज टेस्टर
एक क्या था आपके पास, डू नॉट टच, डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर with your hands, with your hands. Third one is use ISI marked appliances. Fourth one is use fuses to protect the appliance, to protect the appliance from excessive current. Fifth one is don't put your finger in the socket when the switch is on. Right, now the next is don't touch the metal parts of the appliances when they are in use. With your bare hands. These are the precautions that we can take while using the household appliances. Precautions that we can take when we use when these are the precautions which we can take with the household appliances. This is all about the today's lecture. Still, if you are facing in understanding some of the topic, please comment in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.